اب آپ مجھے یہ بتائیے، اب آپ کا ایکسپرٹ اوپینین چاہیے کہ ادارے کو اتنا، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پولیٹیکل گورنمنٹ موجود ہے، اس کے ذریعے سے جواب ہو سکتا تھا، خود کیوں آنا پڑا، خود کیوں واضح طور پہ کہنا پڑا کہ کوئی بات چیت نہیں ہے جب تک کہ آپ تسلیم نہیں کر دیں کہ آپ نے غلطی کی؟ دیکھیں، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہے کہ ادارے پہ جو بیشنگ کی گئی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے اور جاری ہے، اور اس کے جو سربراہ بار بار اس کا نام بھی لیتے ہیں، الزامات بھی لگاتے ہیں، اور یہ سلسلہ پچھلے 1.5-2 سال سے جاری ہے۔ نیچرلی اس قسم یا عدلیہ ہو یا فوج ہو، ان کی طرف سے فوراً رسپانس نہیں آتا۔ اگر کوئی ان کی طرف سے بات کرے تو کہتے ہیں جی ان کے ایجنٹ ہیں۔ تو بیسیکلی سوشل میڈیا اور ویسے جو الزامات ان پہ لگے فوج پہ، اور 9 مئی کو جو ایک پولیٹیکل پارٹی نے کیا، اس کی تیاری اس کے لیڈر بہت عرصے سے کر رہے تھے۔ وہ اسکولوں کالجز میں جا کے پورے یونیورسٹیز میں ایک مہم چلائی ہوئی تھی فوج کے خلاف، اور وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ ایجنڈا 9 مئی کو نہیں ہوا، اس کی تیاری پہلے سے تھی، وہ آپ بیانات بھی دیکھ لیجئے۔ اور اب کیونکہ سزائیں نہیں ہوئیں، ایک جج صاحب تھے، انہوں نے اسٹے کر دیا آرمی کورٹس پہ، حالانکہ یہ سزائیں ودن 24 آور ودن 1 منتھ ہو جانی چاہیے تھی۔ اور یہ جو لوگ ابھی الیکٹ ہو کے بھی آئے، جو بھاگے ہوئے تھے ایک دم بلوں میں سے نکل آئے، یہ ان کو سزائیں ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ جو کارکن ابھی جیلوں میں ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہے، کیونکہ جنہوں نے ان کو پرووک کیا، ورگلایا اور ان انسٹالیشن پہ بھیجا، وہ سارے مفلر ڈال کے ایک پریس کانفرنس کر کے نکل گئے، اور جو چھپے ہوئے تھے وہ الیکشن لڑ کے مگر وہ تو انکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو عام لوگ تھے جو کہ گئے تھے، اور پھر اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ جی خود ادارے کے لوگ بھی شامل ہو گئے اور یہ ہمارے خلاف ہمیں ٹریپ کیا۔ نہیں، آپ کو یہ ان کی بات پہ صداقت لگتی ہے؟ وہ جو سارے فوٹیجز ہیں، جو ساری ان کے لیڈروں کی ہے کہ جی ایچ کیو چلو، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ جی ادھر کور کمانڈر ہاؤس چلو، ان کے سارے وہی لیڈر ہیں نا۔ اور پھر ان کے جو میسیجز تھے، پھر یہ خان جو جا کے یونیورسٹیز کالجز میں فوج کے خلاف، دیکھیں یہ ایک انٹرنیشنل ایجنڈا جس کو وہ خان کیری کر رہا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، یہ فوج ہے، اگر فوج کی طرف سے کوئی ریئیکشن ہے تو اس کو برا نہیں منائیں آپ، یہ 9 مئی کو کامیاب ہو گیا تھا، صرف ناکامی یہ ہوئی کہ زیادہ پبلک نہیں نکلی، ورنہ تو آج یہ انقلاب لاتے۔ کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو انقلاب کی طرف جاتی ہے؟ آپ سیاسی بات لوگوں سے تو بات نہیں کرنا چاہتے، آپ کہتے میں انقلاب لاؤں گا۔ آپ انقلاب لائیں گے یار، آپ اپنا ذرا ماضی چیک کر لیں، آپ اپنا کیریکٹر چیک کر لیں۔ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک باقاعدہ سوچی سمجھی منصوبہ تھا، کی کوشش تھی جو ناکام ہوئی ہے، جو کہ پہلے پرائم منسٹر نے کہہ دیا شہباز صاحب نے، لیکن کیسے؟ میں زین صاحب کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ نے سارے جواب دینے ہیں، وہ بھی نہیں، میں ان کے ایک سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے سب سے بڑے جو نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو ہوا، یہی آپ نے تھیوری پیش کی کہ ہم تو اس کے سب سے زیادہ نقصان ہمیں ہوا ہے، ہم تو بینیفیشری نہیں ہیں اس کے، تو ہمیں کیسے، ہم تو افیکٹی ہیں، یہی انہوں نے بات کی اور یہ کرتے بھی ہیں۔ دیکھیں اس کی بھی پی ٹی آئی کی ایک ہسٹری ہے، استعفے انہوں نے دیے، اس کے بھی افیکٹی یہی تھے، بینیفیشری تو نہ نکلے، اسمبلیاں توڑیں، اس کے بھی افیکٹی یہی تھے، عدم اعتماد کے وقت آئین توڑا، عدم اعتماد کے وقت آئین توڑا، اسمبلی توڑی، اس کے بھی افیکٹی یہی تھے۔ آپ میری بات سمجھے نا؟ تو وہ تو ایک ہسٹری ہے پی ٹی آئی کی کہ وہ ایسی پولیٹیکل ایکٹس کرتی ہے جس کی بعد میں خود ہی افیکٹی بن جاتی ہے۔ اب اس پہ جو میں اسی سے شروع کرتا ہوں، مزمل بھائی کہہ رہے ہیں کہ ایسی ایکٹس کرتی ہے جس کی خود افیکٹو بن جاتے ہیں، ہم تو تسلیم کر رہے ہیں کہ وہ ایکٹس ہم نے کیے ہیں، یہاں پہ ہم آپ کو کہہ رہے ہیں ہمارا اس ایکٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے۔ ہم آپ سے یہ کہہ رہے ہیں، محسن بھائی آپ 2 منٹ آپ دیں گے، آپ نے تو کام بالکل ہی چوک دیا ہے۔ اچھا دیکھیں محسن بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی فوج کے خلاف ایک مہم چلی، اسکولوں اور کالجوں میں جا کے خان صاحب نے ان کو برگلایا، دیز آر ویری irresponsible statements، اور یہ محسن بھائی کے لیول کے موجود ہیں، فوٹیجز موجود ہیں۔ میں عرض کروں نا، آپ نے بات کی، میں نے تو انٹرپٹ نہیں کیا، میں تو کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جو ہمارے جیسے سینئر بندے کے منہ سے ایسی بات زیب نہیں دیتی۔ زین صاحب آج جو فوٹیجز دکھائی گئی اس میں شہریار آفریدی صاحب کی سنائی گئی، دکھائی گئی، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مرکز جو ہے وہ GHQ ہے، ہماری منزل، ہم نے وہاں پہنچنا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر بالکل احتجاج آپ کا حق ہے، احتجاج ضرور کریں۔ اس میں 2 باتیں ہیں، آپ لوگ نٹ پک نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے کسی ایک قائد کی ایک فوٹیج دکھا دی تو ایسی لاتعداد فوٹیج بھی تو موجود ہے۔ آپ نے شاہ محمود قریشی کی فوٹیج کیوں نہیں دکھائی کہ 9 مئی کو وہ صبح کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے پرامن رہنا ہے، ہم نے اپنی فیملیز کے ساتھ احتجاج کرنا ہے، ہم نے لبرٹی چوک میں احتجاج کرنا ہے۔
क्या वो थे हमने भी 9 मई कराची में, और वो भी कराची में थे, मैं भी कराची में। आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, 42 पर्चे मेरे ऊपर हुए हुए हैं, 36 दहशतगर्दी मुकदमे मेरे ऊपर हुए हुए हैं। मैं तो मुझे बताया ना मैं कौन सी नहीं, ये बात तो सारे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो बेगुनाह है, मगर तो फिर कसूरवार भी हैं उसमें। हाँ, तो मैंने तो आपको हमने पहले दिन से कहा, आज अगर आपने रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा दी होती, अगर किसी ने इतनी जरूरत की होती, देखें अगर डीजी आईएसपीआर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनका हक बनता है 100 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दे रहा है तो फिर इतनी जरूरत भी तो रखे ना कि उसको भी सुनने, अच्छा, या आवाम क्या उसको भी रखे। मैं चाहूंगी कि आप सुना, क्योंकि आपने नहीं सुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस, आपने कहा तो मैं दिखाना चाहती हूं। मैं अपना पॉइंट तो कंप्लीट कर लूं। तो आज रऊफ हसन साहब ने भी कैटेगोरिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौकिफ दे दिया कि अगर आपके पास शवाहिद मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, आज 1 साल गुजर गया, उनको कोर्टों में लाएं, उनको करें। और जो बेगुनाह लोग हैं, शहबाज शरीफ साहब बतौर वजीर आज़म, मेरा सवाल ये है, बिल्कुल से आप देखिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल दुरुस्त है, मगर देयर इज अ बिग इफ कि अगर ये सब कुछ भी था, देखें इफ ये कि आपका ये मुद्दा शुरू हुआ कि आपकी गवर्नमेंट गिराई गई, ऐसा ही है, गवर्नमेंट गिराई गई, बहुत सारी गवर्नमेंट्स गिराई गई, किसी ने भी जो है वो लोगों को मुतशद्दिद होने के लिए नहीं कहा, किसी ने जीएचक्यू और कोर कमांडर्स और पार्लियामेंट और पीटीवी पे कब्जे के लिए और हमले के लिए नहीं कहा। ऐसी बात करें, साहब का दरबार में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पे भी हमले वो तो हुआ है, वो तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, किसी ने ये नहीं कहा। लेकिन मैं आज आपके सामने बतौर एक जिम्मेदार ओहदेदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कह रहा हूं कि मैं आज भी समझता हूं कि 9 मई को हमने ये नहीं किया था। हमारी जमात, मेरी बात सुने सर, मौसम एक सेकंड, मेरी बात सुने। पाकिस्तान, आप जो कह रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक माजी है, तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये भी माजी है कि पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे, सबसे बड़े धरने, सबसे बड़ी सर वो लेजिटिमेसी नहीं देता ना कि आप कानून को हाथ में लें, तो अब हम क्यों करेंगे? सर वो लेजिटिमेसी नहीं देता कि आप कानून को हाथ में लें। वो कहते हैं फॉल्स ऑपरेशन है, आज भी वो कहते हैं कि आप एविडेंस दें, प्रोसिक्यूशन का एविडेंस कहां देनी है? हाँ कहां देनी है? अदालतों में तो कोर्ट से गिला किया ना डीजी आईएसपीआर ने। मैंने तो आपको पहले कहा है कि इनसे कोई गिला नहीं है सर, इन्होंने जो करना था कर लिया। पता चलेगा कि दूध का दूध पानी का पानी। ये जो सारे मैसेजेस थे, ये सारी जो फुटेजेस हैं, कोर्ट में पेश, ये क्या जाली है? अच्छा, इनका लीडर भी मुंह पे झूठ बोलता है, घंटे बाद बदल भी जाता है। ये उसी चीज पे है, डिनाइल में है कि जी हमने नहीं किया, हमने नहीं किया, ये लोग हमारे नहीं है। अब सुन ले प्रोसेस है सर। अब इन्होंने कहा कि मैंने इल्जाम लगा दिया, मैं इनको 50 फुटेजेस दिखाता हूँ यूनिवर्सिटीज की, स्कूलों की, कॉलेजेस में, जहां उसने बच्चों से नारे लगवाए फौज के खिलाफ। ये माइंड सेट बदल रहा था। या तो 9 मई पहले आ गया और अभी तक पूरी तैयारी नहीं थी। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मिसाल सामने, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मिसाल सामने, मैं फुटेजेस दूंगा, गवर्नमेंट कॉलेज की मिसाल सामने, मैं फुटेजेस दूंगा। यानी आप कह रहे हैं कि जहन साजी, एक सेकंड, अब ये इसका जवाब आप दे दीजिए। मेरा एक सवाल है, मेरी बात तो कंप्लीट नहीं होने दी। मेरे एक सवाल है, उनकी पूरी फिर बात जो मियां नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में जलसा किया, उसकी बात नहीं हो रही। नहीं, उसकी बात होगी तो बात करेंगे ना। बात तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तरीके इंसाफ की नहीं, बात ये हो रही है नहीं है कि हम आप 47 में चले जाए। फिर मैं आपसे पूरा जवाब आप कर लूंगी जी। मैं, इन्होंने कहा जी गैर जिम्मेदाराना बयान दिया, मैं इनको सारी फुटेजेस कल भिजवा दूंगा जो इन्होंने कॉलेजेस, स्कूल और यूनिवर्सिटीज में गुफ्तगू की और फिर जब जलसों में की। ये कैसे 9 मई से पीछा छुड़ा सकते हैं और कैसे ये भाग सकते हैं 9 मई से? इतनी करीज है। अगर आप देखें इनकलाब क्या होता है, इनकलाब में यहां आप विक्टोरियस होते हैं या आपकी गर्दन जाती है। हिस्ट्री पढ़ ले, जिन्होंने इनकलाब लाया ना, और ऐसा बंदा तो इनकलाब क्या लाएगा जिसका अपना कैरेक्टर चेक कर लें। मकसद ये है कि अगर आपने किया फिर आप उसको डिनाई क्यों करते हैं? अच्छा, अब जैन आप इसका जवाब दे दें, फिर मैं मुज़म्मिल साहब आपके पास आती हूँ। हम कोई चीज डिनाई नहीं कर रहे ना, हम 9 में से भाग रहे हैं, हम तो 9 में भुगत रहे हैं। आप मुझे ये बताएं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐसा कौन सा कायद है और कौन सा कारकुन है जो 9 में नहीं भुग रहा? हम उसको फेस कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं हम उसको कोर्ट ऑफ लॉ में फेस करना चाहते हैं। हम रोज आए दिन दहशतगर्दी की अदालतों में पेश होते हैं। अब 1 साल गुजर गया है, मेरे ख्याल से 47 या 48 से ज्यादा पेशियों पे मैं जा चुका हूं, लेकिन अभी तक वहां पे कोई लेकिन मुझे ये बताइए, कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस बिल्कुल सही है, आप उस दिन कराची में थे, आपके वालिद कराची में थे, उसको भी साइड पे रख दें, ठीक है, लेकिन आपके ऊपर 42 मुकदमात हुए। लेकिन मुझे एक बात का जवाब दें कि ये जो कोर कमांडर लाहौर था, हाउस था, उसके बाहर उनकी बहनें इमरान खान साहब की कैसे पहुंच गई, उनके भांजे, उनकी फैमिली कैसे पहुंच गई? देखिए, ये एक सवाल है जो कि उसका जवाब आना चाहिए। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को एहतजाज किया? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बिल्कुल 9 मई को एहतजाज किया, लिबर्टी चौक पे। क्यों किया?
हमारे कायद को अरेस्ट किया गया था, कोर्ट के अहाते के अंदर से कायद को उठा के अरेस्ट किया गया था, हम उसकी सीसीटीवी फुटेज मांग रहे, वो भी नहीं मिल रही हमें अभी। तो एहतजाज बिल्कुल हमने किया, सड़कों पे हम बिल्कुल निकले, लेकिन हमारे उसको देखिए, जब अवाम बाहर निकल आती है, एक मॉब मेंटालिटी बन जाती है, फिर आप और मैं उसका फैसला नहीं कर सकते वो मॉब किस तरह मोड़ रहा है। सर, उसको कोर कमांडर, मॉब में आपके लीडर की बहनें थी। अब मेरी आज तो सुन लेना, लेट मी कंप्लीट। उस मॉब को कोर कमांडर हाउस कैसे मोड़ा जाता है? लिबर्टी चौक से शेरपाव पेज क्रॉस करके, गैरिसन सिक्योरिटी फोर्स का नाका क्रॉस करके, पूरी कंटोनमेंट क्रॉस करके कोर कमांडर हाउस तक वो कैसे पहुंचते हैं? वहां पर पुलिस क्यों नहीं थी? वहां पे जो रूटीन इसलिए पहुंचते हैं कि उनके लीडरान उनके साथ थे। भाई लीडरान साथ, मैं यही तो सवाल पूछ रही हूं आपसे कि वो वहां पे कैसे गए? मेरी बात तो सुन ना, लीडरान उनको कोई हवाई घोड़े पे चढ़ा के तो नहीं ले गए ना, वहां पे पैदल चल के गए हैं और 2.5 से 3 घंटे का उनको पीरियड लगा है। तो सबसे पहले तो ये आईजी पंजाब से पूछा जाए कि भाई तुम्हारी नफरी किधर थी, उसके बाद फिर ये आर्मी से पूछा जाए, कोर कमांडर साहब से पूछा जाए और उनसे पूछा गया है कैसे घुस गए अंदर। तो जब ये सारा होता है, फिर जो आप फुटेज की बात करते हैं वो फुटेज क्यों नहीं दिखाते कि फौज के ट्रकों के अंदर से बंदे निकल मेरा सवाल ये है, तो मेरा सवाल ये है, मेरा वही पे आपकी मैं आपकी बात को बिल्कुल जी एक जुमले खत्म कर रहा हूं, फिर ये क्यों नहीं दिखा? अब आपने कह दिया कि जी डॉक्टर यास्मीन रायसत साहिबा जो है वो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट थी सारे की, वो क्यों नहीं दिखा रहे कि बेचारी डॉक्टर यास्मीन रायसत साहिबा 70 साल की कैंसर पेशेंट मेगाफोन पे खड़े होकर कह रही है कि अंदर नहीं जाना, बाहर निकलो, बाहर आओ। ये सवालात इनकी तरफ से भी हैं कि अगर हमारे लोग गए भी थे, वो जज्बात में थे, लेकिन आगे जो कुछ हुआ वो इन्होंने नहीं किया। आप लिबर्टी चौक गई हैं कभी? मैं गई हूँ। आपने देखा लिबर्टी चौक? रोज जाता हूँ। रोज जाते हैं? कितनी बिल्डिंग है वहाँ? बहुत सारी। खाली अस्करी टावर क्यों जलाया? बहुत अच्छा, मतलब मॉब ने लिबर्टी हाइट्स नहीं जलाया, सामने नूरजहां का प्लाजा है वो नहीं जलाया, तो ये तो सिर्फ आप मेरी बात समझे, इसलिए कि आप टारगेट कर रहे थे फौजी तनसीबात को। मैंने आपको कहा आप चले जाए, आप पूरे पाकिस्तान में आपने गुजरांवाला में कोई प्लाजा नहीं जलाया, आप कंटोनमेंट गए, आपने फैसलाबाद में ISI के बात पूरी कर लेने देना, जैन भाई को गिलाया कि बाकी नहीं करने देते, खुद भी किसी को नहीं करने देते, अल्लाह के बदलते हैं, अल्लाह के बदल से वो भी तो पूछ रहे हैं ना कि फिर हम वो तो ये बार बार कह रहे हैं फैसलाबाद में सिर्फ ISI हमने लोग छुपे हुए थे। वो मेरा तो ये मौक़िफ़ है कि कैसा ट्रेंड मॉब था जिसको ये पता था कि मैंने सिर्फ आर्मी इंस्टॉलेशन पे हमला करना है। मैंने साथ वाली बिल्डिंग पे ना, बिल्कुल अस्करी टावर के साथ वाली बिल्डिंग को हाथ भी नहीं लगाना है, शीशा भी नहीं तोड़ना, मैंने सिर्फ अस्करी टावर जलाना है, मैंने सिर्फ कोर कमांडर, मैंने सिर्फ ISI का हेडक्वार्टर, मैंने सिर्फ कंटोनमेंट, मैंने सिर्फ एयर बेस। ये कितना ट्रेंड मॉब था जिसको ये कह रहे हैं मॉब की मर्जी है, वो जिधर मर्जी चली जाए। इस मॉब ने एक भी सिविलियन चीज को आग नहीं लगाई। 9 मई को आप मेरी बात समझिए ना, इसने एक भी लाइट नहीं तोड़ी, ट्रैफिक लाइट, इसने आर्मी की कंटोनमेंट की चीजें तोड़ी। आप मेरी बात समझिए, हमारा भी सवाल है आपके साथ कि ये आपका कितना ट्रेंड मॉब था जिसको ये सारा कुछ पता था कि सिविलियन लाइट नहीं तोड़नी, आर्मी का गेट सवाल तोड़ना ये है, GSQ का गेट तोड़ना है। सवाल ये है कि जो उससे पहले और जो फयाजुल हसन चौहान साहब ने कहा था कि सारी की सारी वो जो उनकी जूम कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर एविडेंसेस थी, वो कहाँ है? देखिए एक चीज, जैन तो छोटे भाइयों की तरह, मैं मतलब डायरेक्ट बहस नहीं करना चाहता और ना ये हम अदालत में खड़े हुए हैं कि मतलब काउंटर करना है एक दूसरे के आर्गुमेंट्स को जी। मैं ये कह रहा हूँ, मतलब ये बात तो बहुत ही मायूब है कि आप कहें जी 9 मई हमने नहीं किया, और ये मैं बता दूं आपको, ये वक्त साबित कर देगा कि खान इंटरनेशनल एजेंडे के ऊपर फौज के पीछे लगा हुआ है। 2018 में फौज ठीक थी, 17 में वो बात भी तो उन्हीं के साथ करना चाहते हैं मोहसिन साहब। उसके मैं आपको बता दूं, अगर 9 मई में एस्टेब्लिशमेंट इनसे बात करती है तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को भी फिर जूते ही पड़ने चाहिए जो 9 मई को हुआ। ये काम आसान नहीं था जो इन्होंने किया। खान के जहन में कुछ और था, वो चाहता था कि मैं मिलिया मेट करके मैं इनको नीचे लगा लूं और मैं सदा इस मुल्क का हुक्मरान। वो जमहूरियत पे तो बिलीव ही नहीं करता, उसने पार्लियामेंट 4.25 साल में खुद नहीं चलने दी, सियासी लोगों से वो बात नहीं करना चाहता, वो सिर्फ उनके बलबोते पे ही हुकूमत करना चाहता था। और आपने सुना होगा कहते थे हम एक पेज पे हैं, एक पेज पे, वो पेज कहाँ गया? मकसद ये है कि इसका आज जो DG साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में और जो अभी सुरवर्दी साहब ने कहा, बेसिकली वो जो केसेस थे 9 मई के, उनका महीने में फैसला होना चाहिए था।
वो इतना लटक गया बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट स्टे आ गया, फलान आ गया, ये वो। यहाँ तो मसलतें बहुत हैं, जजेस साहिबान पसंद और नापसंद पे बात करते हैं। नहीं तो है ना, मैं आपके शो से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान से। देखें 9 मई का 1 साल हो रहा है, वो इसको अब अंजाम की तरफ जाने के लिए इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाएं और इनके मुकदमात के फौरी फैसले 30 डेज में करने के लिए सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस दे। स्पीडी ट्रायल्स होने चाहिए, डे टू डे, रात को अदालतें लगनी चाहिए और जो मुल्ज़म हैं उनको सजाएं दे दें, जो नहीं हैं उनको बरी कर दें। इस तरह मुल्क में देखें ना एक आज 10 लोगों को बरी किया है। मैं खबर देख रही थी कि मुजम्मिल भाई की इस बात से हम इत्तफाक करते हैं। मैंने पहले क्योंकि मैंने कहा वो निज़ाम अदल से